تو آج ہم سلطان محمود غزنوی کے دور کی ایک بڑی دلچسپ حکایت کا گہرائی میں جائزہ لے رہی ہیں۔ جی، اور یہ کہانی بظاہر تو بہت سیدھی سادی لگتی ہے نا؟ بالکل۔ ایک بادشاہ اور کچھ چور، لیکن اس کی تہوں میں حکمت عملی، نفسیات اور قیادت کے حیران کن اصول چھپے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تفصیلات جو ہیں یہ ہمیں نورانی ٹاکس نامی ایک یوٹیوب چینل سے ملی ہیں۔ اور کہانی کا پس منظر یہ ہے کہ سلطان کے شہر میں چوری کی وارداتیں بہت ہی زیادہ ہو گئی تھیں۔ ایک طرح سے نظام ناکام نظر آ رہا تھا۔ تو سلطان نے مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن روایتی طریقے سے نہیں۔ جی، انہوں نے شاہی لباس اتار کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور خود چوروں کو پکڑنے کے لیے شہر کی تاریک گلیوں میں اتر گئے۔ اور یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ بالکل۔ یہ دیکھیں، صرف ایک بادشاہ کا بھیس بدلنا نہیں ہے، یہ قیادت کے ایک بہت بڑے اصول کو ظاہر کرتا ہے، جسے ایکسٹریم اونرشپ کہتے ہیں۔ جی، یعنی انتہائی ذمہ داری۔ جب نظام ناکام ہو جائے تو ایک حقیقی لیڈر ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈالتا، وہ خود آگے آتا ہے۔ جاسوس بھیجنا تو ایک محفوظ آپشن ہوتا ہے نا؟ بہت محفوظ، لیکن خود میدان میں اتر کر سلطان نے نہ صرف مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کا ارادہ ظاہر کیا، بلکہ ایک ایسا خطرہ مول لیا جو یا تو ان کی ساکھ کو فوری طور پر قائم کر سکتا تھا یا پھر انہیں ختم بھی کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ اچھا، تو سلطان گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور انہیں چوروں کا ایک گروہ نظر آتا ہے۔ جی، وہ خاموشی سے ان میں شامل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور چور انہیں اجنبی سمجھ کر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں۔ اس جواب میں ایک طرح کی سچائی بھی ہے، کیونکہ اس وقت وہ انہی کی دنیا کا حصہ بننے آئے تھے۔ بالکل۔ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں چور ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری حقیقت کو سمجھتا ہوں۔ یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے۔ جی، تعلق قائم کرنے کا، اور یہیں سے وہ صورتحال کا کنٹرول سنبھالنا شروع کرتے ہیں۔ وہ صرف ان میں گھل مل نہیں رہے، بلکہ انہیں ایک ایسی سمت میں لے جا رہے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ سمت بہت جلد واضح ہو جاتی ہے۔ جی، جب چور بتاتے ہیں کہ وہ چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو سلطان ایک ایسی تجویز پیش کرتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، اگر زندگی بدلنی ہے تو کام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل لوٹتے ہیں۔ یہ سن کر تو چور بھی دنگ رہ گئے ہوں گے۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ اب نفسیاتی طور پر دیکھیں تو اس ایک تجویز سے سلطان نے کئی مقاصد حاصل کیے۔ اچھا، مثلاً؟ پہلا تو یہ کہ انہوں نے صرف ان کا اعتماد نہیں جیتا، بلکہ ان کی نظر میں ایک افسانوی قسم کی حیثیت حاصل کر لی کہ یہ تو ہم سے بھی بڑا چور ہے۔ بالکل۔ چوروں نے سوچا ہوگا کہ ہم تو صرف چور ہیں، یہ تو چوروں کا بادشاہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، سب سے بڑا اور خطرناک ہدف تجویز کر کے انہوں نے خود کو گروہ کے سب سے نڈر اور طاقتور رکن کے طور پر پیش کیا۔ قیادت ہمیشہ اس کے پاس جاتی ہے جو سب سے بڑا خطرہ موڑ لینے کو تیار ہو۔ تو یہ صرف بہادری کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ قیادت پر قبضہ کرنے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ جی، اور یہ کام کر گئی۔ چور ان کی جرت سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً انہیں اپنا سردار مان لیا۔ اور پھر منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو جانیں، سب اپنا اپنا کمال بتائیں۔ اور یہاں کہانی کرداروں کی مہارتوں کے ذریعے انسانی کمزوریوں اور طاقتوں کی علامتوں کو سامنے لاتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب یہ صرف چوروں کی خوبیاں نہیں ہیں؟ نہیں، یہ استعارے ہیں۔ اچھا، تو پہلا چور کہتا ہے مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں زمین کی مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ نیچے خزانہ دفن ہے یا نہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک جادوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ لالچ کی علامت ہے۔ وہ شخص جو دولت کو دور سے بھانپ لیتا ہے، واہ! یہ معاشرے میں موجود اس طبقے کی نشاندہی کرتا ہے جس کی زندگی کا واحد مقصد دولت کا حصول ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا چور کہتا ہے میری نظر اتنی تیز ہے کہ اگر میں کسی کو گھپ اندھیرے میں بھی ایک بار دیکھ لوں تو دن کی روشنی میں اسے فوراً پہچان سکتا ہوں۔ یہ نگرانی اور حافظے کی طاقت ہے، ایک زندہ CCTV کیمرہ سمجھ لیں۔ صحیح۔ اور یہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ سچائی اور شناخت کبھی چھپتی نہیں، چاہے حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، ہر عمل کا ایک گواہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تیسرا کہتا ہے میں کتوں کی زبان سمجھتا ہوں۔ یہ تو سب سے عجیب ہے۔ لیکن یہ وجدان اور فطرت سے تعلق کی علامت ہے۔
कुत्ते वफादारी और खतरे को भांपने की सलाहियत रखते हैं ना, जी। तो ये किरदार इस बात की निशानदेही करता है कि बाज़ औकात मंतिक से ज़्यादा अहम वो गैर महसूस इशारे होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और चौथा कहता है, कितनी ही ऊंची दीवार हो, मैं कमंद फेंक कर उस पर चढ़ सकता हूँ। ये तो वाज़ेह है, रुकावटों को अबूर करने की सलाहियत। जिस्मानी रुकावटें। जी, जिस्मानी रुकावटें। अब सुल्तान ने इन चारों सलाहियतों को इकट्ठा कर लिया है, लालच, निगरानी, वजदान और जिस्मानी ताकत। अब बारी उनके अपने कमाल की थी। और जब चोर अपने नए सरदार से पूछते हैं कि आपका क्या कमाल है, तो सुल्तान का जवाब इस पूरी कहानी का मतलब महवर बन जाता है। जी बिल्कुल। वो कहते हैं, मुझ में ये खूबी है कि अगर मुजरिमों को सजाए मौत का हुक्म हो जाए और जल्लाद उन्हें तख्तादार तक ले आए, तब भी अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो उनकी सजा माफ हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। ये एक नाकाबिल यकीन दावा है। ये सुनकर चोरों को तो लगा होगा कि उनकी लॉटरी निकल आई है। बिल्कुल, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी पेशीन गोई है जिसे वो पूरा करने की ताकत रखते हैं, मगर इस तरह नहीं जिस तरह चोर समझ रहे हैं। यानी ये कोई जादुई कमाल नहीं था। नहीं, ये शाही इख्तियार का बयान था। वो उन्हें एक झूठी हिफाजती जमानत दे रहे हैं जो आखिर में सच साबित होने वाली थी। वाह, क्या बात है। ये उनके अपने मंसूबे पर मुकम्मल एतमाद को जाहिर करता है। वो उन्हें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाल सकता हूं, और यही बात उनके तमाम शुकूक व शुबहात को खत्म कर देती है। यानी उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत को एक खुफिया इशारे में छुपाकर पेश किया। जी। अब ये पांचों महल की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में एक कुत्ता उन पर भौंकता है। अब सबकी नजरें उस चोर पर हैं जो कुत्तों की जबान समझता है। उसे पूछा जाता है कि ये क्या कह रहा है। और यहाँ कहानी में एक नफ्सियाती टेस्ट आता है। एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो इनकी पूरी हकीकत को चैलेंज करती है। जी। वो चोर तर्जुमा करता है, साथियों, ये कुत्ता कह रहा है कि तुम पांचों में से एक बादशाह है। ये सुनकर तो सब हंस पड़ते हैं। बिल्कुल, और इसका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है कुत्ता पागल है, कोई कहता है कि इसका मतलब है कि हम खजाना लूटने के बाद बादशाह बन जाएंगे। यानी उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये तस्दीकी तासुब या कन्फर्मेशन बायस की बेहतरीन मिसाल है ना? बेहतरीन। इंसान इस मालूमात को कबूल करता है जो उसके पहले से मौजूद अकायद से मुताबिकत रखती हो, और उस मालूमात को मुस्तरद कर देता है जो उन्हें चैलेंज करे। सच्चाई उनके बिल्कुल सामने थी। बिल्कुल सामने थी, एक माफूकुल फितरत जरिए से उन तक पहुंचाई गई। लेकिन चूंकि वो इस वक्त चोरी के मंसूबे पर यकीन रखते थे, इसलिए उन्होंने सच्चाई को अपने ख्वाहिश के मुताबिक मोड़ लिया। उन्होंने इस इम्कान पर गौर ही नहीं किया कि उनके दरमियान वाकई कोई बादशाह हो सकता है। और यही गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली थी। वो आगे बढ़ते हैं। महल पहुंचकर कमंद फेंकने वाला दीवार पर चढ़ता है, खजाने की खुशबू सूंघने वाला जगह तलाश करता है, और वो कामयाबी से खजाना लेकर बाहर आ जाते हैं। मंसूबा बज़ाहिर 100% कामयाब हो चुका था। उनकी हर महारत ने काम किया, जिससे उनका अपने आप पर और अपने सरदार पर एतमाद मजीद पुख्ता हो गया। वो इस वक्त कामयाबी के नशे में चूर थे। और यही वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा गैर मोहतात होता है। अब वो शहर से बाहर एक जंगल में खजाना तकसीम करने बैठते हैं, लेकिन यहाँ सुल्तान एक और चाल चलते हैं। जी। वो कहते हैं कि खजाने को अभी तकसीम करना बेवकूफ़ी होगी। सुबह जब चोरी का शोर मचेगा तो हर घर की तलाशी होगी और हम सब पकड़े जाएंगे। यहाँ वो उनके दो सबसे बड़े जज्बात को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लालच और खौफ। अच्छा, वो कैसे? खजाना पाने का लालच उन्हें इकट्ठा लाया था, लेकिन अब उसे खोने का खौफ उन्हें सुल्तान की अगली बात मानने पर मजबूर कर देगा। सही। तो सुल्तान तजवीज देते हैं कि खजाने को यहीं जंगल में दफन कर देते हैं, और कुछ दिन बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब आकर तकसीम कर लेंगे। ये तजवीज सबको बहुत मंतिकी लगती है और वो मुत्तफिक हो जाते हैं। वो खुद को उनके मुहाफिज के तौर पर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके सबसे बड़े खैरखा के तौर पर, जबकि हकीकत में वो उनकी गिरफ्तारी का आखिरी बंदोबस्त कर रहे हैं। ये नफ्सियाती हेरा फेरी की एक आला मिसाल है। और फिर आखिरी बार जब खजाना दफन करने के बाद सब जाने लगते हैं तो सुल्तान कहता है, भाइयों, मैं गिरोह में नया हूँ, मुझे तुम सबके घरों के पते मालूम होने चाहिए ताकि बतौर सरदार मैं तुमसे राब्ता रख सकूं। और चोर खुशी खुशी अपने पते बता देते हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर सुल्तान पर भरोसा कर लिया था।
वो ये समझ ही नहीं पाए कि उनका अपना बनाया हुआ सरदारी उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत इकट्ठा कर रहा है। उनकी नजर में ये सरदार की जिम्मेदारी थी, लेकिन हकीकत में ये बादशाह का इंसाफ था। अगली सुबह पूरे शहर में शाही खजाने की चोरी का शोर मच जाता है और सुल्तान दरबार में बैठकर सिपाहियों को उन चारों चोरों के पते देते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं। सिपाही उन्हें फौरन पकड़ लाते हैं। अब इन चोरों के लिए तो ये मुकम्मल सख्ते का आलम है। वो सोच रहे होंगे कि उनकी मुखबरी किसने की, उनका सरदार कहाँ गायब हो गया। शायद सरदार ने ही उन्हें धोखा दिया हो, ताकि सारा खजाना अकेले हड़प कर सके। उनके जहन में हर तरह के शुकूक होंगे सिवाय सच्चाई के। उन्हें काजी के सामने पेश किया जाता है और शाही खजाना चुराने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी जाती है। अब तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें यकीन हो जाता है कि वो मारे जाएंगे। सजाए मौत पर अमल दरामद से पहले उन्हें उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए सुल्तान के दरबार में पेश किया जाता है। और अब मंजर मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। रात का अंधेरा, फटे पुराने कपड़े और खुफिया मंसूबा अब दिन की रोशनी, शाही दरबार और एक हतमी फैसले में तब्दील हो गया है। ताकत का तवाज़ुन पूरी तरह पलट चुका है। जी, यहाँ आकर कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। जब इन चारों को तख्त के सामने लाया जाता है तो वो चोर जिसकी नज़र बहुत तेज थी, जी वही, उसकी निगाह तख्त पर बैठे सुल्तान महमूद गजनवी पर पड़ती है। वो एक लम्हे के लिए ठिठकता है और फौरन पहचान लेता है कि यही उनका पांचवां साथी, इनका सरदार है। वो चुपके से बाकी तीनों को कहता है कि हमारा सरदार तो बादशाह सलामत खुद है। ये उसकी महारत का आखिरी और सबसे अहम इम्तिहान था। रात को उसने सुल्तान को एक चोर के रूप में देखा था और अब वो इसे एक बादशाह के तौर पर पहचान रहा है। उसकी सलाहियत ने उसे धोखा नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। उसने अंधेरे में जो देखा था उसे रोशनी में भी पहचान लिया। सुल्तान उनकी खिसर फुसर और चेहरों पर आई हवाइयों को देख लेते हैं। जी, अब वो पहचानने वाला चोर हिम्मत करता है, हाथ बांधकर आगे बढ़ता है और बादशाह को मुखातिब करके कहता है, ए हमारे सरदार, हम चारों ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया। अब आप अपनी दाढ़ी कब हिलाएंगे? ये एक बादशाह के सामने सजाए मौत के वक्त एक नाकाबिले यकीन हद तक जुर्रतमंदाना सवाल है। ये सिर्फ एक इल्तिजा नहीं है, ये एक चैलेंज भी है। वो सुल्तान को उनका अपना वादा याद दिला रहा है। वो एक तरह से कह रहा है कि आपने एक खेल खेला, हम उसमें हार गए, लेकिन आपने एक उसूल तय किया था, क्या आप उस उसूल पर कायम रहेंगे? बिल्कुल। ये सुल्तान के पूरे मंसूबे का नुक्ता उरूज था। वो सिर्फ उन्हें पकड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें अपनी हिकमत, ताकत और इख्तियार का कायल करना चाहते थे। सुल्तान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ते हैं। उनकी जहानत और जुर्रत उन्हें भा जाती है। वो कहते हैं, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान कर अपना कमाल दिखा दिया। अब मैं अपना कमाल दिखाता हूँ और अपनी दाढ़ी को हिलाता हूँ। और इसके साथ ही सुल्तान उन चारों की सजाए मौत को माफ करके उनकी रिहाई का हुक्म दे देते हैं। सुल्तान का ये रद्द अमल, मुस्कुराना और फिर माफ कर देना, ताकत, रहम और जहानत का एक गैर मामूली इम्तिजाज है। वो चाहते तो कानून के मुताबिक उन्हें सख्त तरीन सजा दे सकते थे और कोई उनसे सवाल न करता, लेकिन उन्होंने माफी का रास्ता चुना। इस एक अमल से उन्होंने न सिर्फ अपना वादा निभाया, बल्कि उन चोरों के दिलों में खौफ की बजाय इज्जत और वफादारी पैदा कर दी। तो इस सब का क्या मतलब है? चारों चोर सुल्तान के कदमों में गिरकर रो रो कर माफी मांगते हैं और आइंदा के लिए चोरी से तौबा कर लेते हैं। वो वादा करते हैं कि वो हमेशा नेकी के रास्ते पर चलेंगे। और यही इस कहानी का असल सबक है। ये कहानी सिर्फ एक कामयाब गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि इस्लाह की है। सुल्तान की असल कामयाबी खजाने की वापसी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असल कामयाबी थी चार मुजरमों को हमेशा के लिए नेक शहरी बनाना। ये जाहिर करता है कि एक अजीम रहनुमा का काम सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि उन हालात को समझना होता है जो जुर्म की तरफ ले जाते हैं। जी, और फिर एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना होता है जो मुजरम की इस्लाह करे। सुल्तान ने उन्हें सिर्फ पकड़ा नहीं, बल्कि उन्हें तब्दील कर दिया। ये कहानी क़यादत के एक नज़रअंदाज किए गए पहलू को उजागर करती है, ये कि इख्तियार का सबसे बड़ा मुजाहिरा सजा देना नहीं, बल्कि माफ़ी के ज़रिए वफादारी पैदा करना है। बिल्कुल, क्योंकि खौफ से इताअत आर्जी होती है, लेकिन जब कोई आपको मौत के मुंह से वापस लाए तो उससे पैदा होने वाली वफादारी मुस्तकिल होती है। ये कहानी हमें इंसाफ के एक बहुत ही मखसूस तसव्वुर पर सोचने पर मजबूर करती है। ये एक रहनुमा की ज़ाती मुदाखलत को सराहती है,
لیکن یہ ایک سوال بھی پیدا کرتی ہے نا جی، بہت اہم سوال۔ کہ آج کی دنیا میں جہاں ہم اداروں اور قوانین کی حکمرانی پر زور دیتے ہیں، کسی رہنما کے اس طرح کی ذاتی اور براہ راست مداخلت کب ایک طاقت بنتی ہے اور کب یہ نظام کو کمزور کر کے ایک فرد کی آمریت میں بدل سکتی ہے؟ اور ایک آخری بات، اگر کسی ریاست کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے سربراہ کو خود بھیس بدل کر گلیوں میں اترنا پڑے تو یہ اس رہنما کی عظمت کی دلیل ہے یا اس کے نظام کی ناکامی کا ثبوت؟